UKV, let's come together to learn. Hello friends, I am Rityunjay Singh. Welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall study about part of the chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plant. It includes introduction of a flower, parts of a flower, stamen, structure of anther and microsporogenesis. Okay, let's start the topics one by one. Friends, this is the flower diagram, and here some different structures are there, some different parts are there. First one is the stigma, another one is the anther. Actually, anther is the male reproductive part, in which the stigma is the female reproductive part. Here this is the anther and this one is the filament that is present here, and stigma is the female part of a female reproductive part, and then style is also included in the female reproductive part, then ovary, receptacle and ovule. Okay, now when we proceed to the next point, that is flower. What is flower? Flower is a modified shoot. It's a modified shoot. That means after modification in the shoot system, flower will develop. It develops from floral primordia. Okay, it develops from floral primordia. Primordia develops first into floral bud and then into flower. Many hormonal and structural changes are initiated, leading to the differentiation and development of the floral primordia. They first develop into floral buds and then into flower. Now next point is they are reproductive part of plant. Flower bears the reproductive organs where gametes are produced. As all of you know, androecium is the male reproductive wall, consists of stamens. Gynoecium is the female reproductive part of a flower. It consists of carpel. Okay, now next point is about the stamen. Stamen is the male reproductive unit, okay, of an angiosperm. It consists of two parts. First one is the stamen. Stamen is the long and slender stalk, consists of filament, long and slender stalk. Next point is a terminal and bilobed structure called anther. Terminal and bilobed structure is called as anther. Okay, the filament is attached to the thalamus or the petal. If the filament is attached to the petal, the condition is known as epipetalous. इस कंडीशन को हम एपीपेटलस कहते हैं. दैट मीन्स हम अगर पेटल से कोई फिलामेंट जुड़ा हुआ रहे, से दिस इज पेटल, और इससे जुड़कर कोई फिलामेंट पाया जाए तो उसे हम कहेंगे एपीपेटलस कंडीशन कहा जाता है. ठीक है, तो अब हम ये डायग्राम देखते हैं, स्ट्रक्चर टीएस देखते हैं एंथर का. इसमें आपको नजर आ रहा होगा यहां फिलामेंट जुड़ा रहता है और ये इस तरीके से डबल बाइलोब्ड एंड डाइथिकस कंडीशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड विद टू थिकाई इन ईच लोब. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइथिकस, and a longitudinal groove separates the theca. Okay, longitudinal groove. In a cross section, the anther is a tetragonal, that means four-sided structure, consists of 4 microsporangia. Okay, and indirectly it is known as pollen sac. इसे हम pollen sac कहते हैं. आपको ये समझ में आ रहा है. अब हम जब एंथर के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो आपको आना चाहिए कि ये मैंने बताया कि ये ऑलरेडी बाइलोब्ड होते हैं एंड दे आर डाइथिकस. ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट्स द थीका. क्रॉस सेक्शन देयर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब. 2 हमारे हर लोब के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस डायग्राम में आपको दिखाया है. लेटर ऑन
2 microsporangia of each lobe fuse as a pollen sac. ओके, उसके बाद होता क्या है, a microsporangia is circular, okay, in outline. It is circular in outline and it is surrounded by 4 layers, 4 wall layers. These much. First one is the epidermis. पहले वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है. नेक्स्ट वन इज द सेकंड लेयर इज एंडोथीशियम, और ये जो लेयर होती है वेयर सेल्स डेवलप थिकनिंग. एंड देन थर्ड वन इज द मिडिल लेयर, that is 2 to 4 layer of cells, and the fourth one is tapetum. Okay, ये इनर मोस्ट लेयर होती है एंड हैज ए लार्ज बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म. डेंस साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें पाया जाता है. फर्स्ट वन एपिडर्मिस, सेकंड वन एंडोथीशियम, थर्ड वन मिडिल लेयर एंड द फोर्थ वन टैपेटम. ओके, अब ये आपको समझ में आएगा कि ये चारों लेयर के मैंने फंक्शंस भी आपको बताए. एपिडर्मिस का जो फंक्शन होता है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज आ सकती है. सेकंड लेयर एंडोथीसियम है जहां पर थिकनिंग्स डेवलप होती है. थर्ड लेयर हमारी मिडिल लेयर है एंड द फोर्थ वन इज द टैपेटम. अभी देखेंगे इनके फंक्शंस. तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर टैपेटम का फंक्शन होता है. टैपेटम एक्चुअली क्या करता है, नरिशेस द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर के लिए. ओके, वाइल द अदर 3 वॉल लेयर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन. बाकी ये तीनों जो लेयर होती हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंड इट हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन. ओके, हाँ, तो आप इसको समझिए. जो अंदर की तीनों लेयर होती हैं ये सब आपको डेहिसेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करती हैं, और बाकी ये जो बाहर की अंदर इनर मोस्ट लेयर होती है टैपेटम, ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. देखिए, टैपेटम नरिशेस द अंडरलाइंग डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स एंड व्हेन एंथर इज यंग a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangia. एक बार और समझिए इसे. जब भी एंथर यंग होता है तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो कंपैक्टली अरेंज्ड होता है. ये है माइक्रोस्पोरेंजिया. ओके, ये कंपैक्टली अरेंज्ड होता है होमोजिनस सेल से मिलकर, और जिनसे हमारा क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं सेंटर के ऊपर. ओके, अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ये एक हमारा पॉलन ग्रेन है. ओके, पॉलन ग्रेन के अंदर जब ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पर बाहर की तरफ एक पोर है, देन दिस इज न्यूक्लियोलाई, दिस वन इज इनर लेयर दैट मीन्स इंटाइन, आउटर लेयर दैट इज एक्साइन, और यहाँ पर सेलुलोज की थिकनिंग है. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन कैसे बनता है वो हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, इनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड दैट डेवलपमेंट is known as microsporogenesis. तो etymologically microsporogenesis is made up of 2 different word. First one is the micro, another one is the genesis. देखिए, नॉर्मली हम माइक्रो मीन्स स्मॉल के लिए यूज करते हैं, और जेनेसिस जो होता है टू फॉर्मेशन. यहाँ पर स्मॉल जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है वो मेल के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये एक प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल. पॉलन मदर सेल से ये हमारा फॉर्मेशन होता है, और पॉलन मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होती है, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, द सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू. अभी हमने बात किया था यंग में जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होती हैं, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया में वो हमारा क्या करता है, मियोसिस के अंदर होते हैं, और वो बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब हो गया 4 डिफरेंट सेल्स. जैसे ये है, ये डिवाइड किया तो पहले ये डायड बनेगा, फिर अगेन ये डिवाइड किया तो ये ट्रायड बनेगा. ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं टेट्राड, अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 cells. As each cell of sporogenous tissue has a potential to form tetrad, so each cell is a microspore mother cell. तो इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या
पॉलन मदर सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल जो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू का, दे आर पोटेंशियल टू डेवलप टेट्राड, ये डिवाइड करके टेट्राड बना सकते हैं, इसीलिए इनको हम पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ओके, जब ये मैच्योर करेंगे, ऑन मैच्योरेशन डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर द स्पोर्स डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। ये जो हमारा टेट्राड कंडीशन था, ये जब मैच्योर कर जाएगा, डिहाइड्रेट कर जाएगा, उसके बाद ये हमारा क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा और इंडिविजुअल टेट्राड डेवलप करके पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ द एंथर। जैसे ही एंथर ब्रेक डाउन करेगा, इस तरह से ये ब्रेक करेगा, उसके बाद पॉलन ग्रेन इनमें से रिलीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन एक्चुअली होता क्या है, इट इज स्फेरिकल इन शेप, ये हमें मालूम है, ये स्फेरिकल इन शेप होगा, स्फेरिकल इन आउटलाइन होगा। इनके अंदर प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल होती है। आउटर वन को एक्साइन कहते हैं, इनर वन को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो होता है इट इज हार्ड मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और ये वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्पीसीज होता है, और ये रेजिस्टेंस होता है ऑर्गेनिक मैटर का, withstand high temperature acid alkali, and it has a prominent aperture known as germ pore। ये जो बाहर की लेयर होती है, यहाँ बीच बीच में ओपन स्पेसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। ओके, अब इंटाइन के बारे में पढ़ते हैं। इंटाइन क्या होता है, एक थिन लेयर होती है, इनर मोस्ट है, कंटिन्यूअस लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये किससे मिलकर बनी होती है, 2 कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, एक सेलुलोज होता है और दूसरा होता है पैक्टिन। अब ये जो जानते हैं, पॉलन ग्रेन जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है ये कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एंड देन मैच्योर पॉलन ग्रेन हैज 2 सेल्स। कभी भी हम बात करेंगे मैच्योर पॉलन ग्रेन की तो इसके पास 2 सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, अनदर वन इज द जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं। ठीक है, इट इज बिगर एंड अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, while the generative cells are smaller in size and they are spindle shaped, okay, with dense cytoplasm and a nucleus, and it floats in vegetative cell cytoplasm। और ये हमारा वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्लोट करता रहता है। इन 60% ऑफ द स्पीसीज pollen grains are shed in 2-celled stage, whereas 40% species it's shed in 3-celled stage। तो इसका मतलब कैसे हुआ, 2-celled stage तो हमने अभी पढ़ा, वो हमारा किसके अंदर पाया जा रहा है, 60% ऑफ स्पीसीज के अंदर एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, ये एंजियोस्पर्म की बात कह रहा है, ये एंजियोस्पर्म के 60% स्पीसीज में 2-celled स्टेज में होता है और 40% में क्या होता है, 3-celled स्टेज में होता है। 3-celled स्टेज कैसे बना, जो हमारा ऊपर वाला था वेजिटेटिव सेल, अनदर नीचे वाला था जनरेटिव सेल। अब क्या होता है, इस जनरेटिव सेल में डिवीजन हो जाता है, तब ये हमारे 2-celled स्टेज यहाँ और ऊपर 1, दैट मीन्स टोटल 3-celled स्टेज हमारे एंजियोस्पर्म में होता है। और ये जो डिवीजन होता है जनरेटिव सेल से वेजिटेट 2 डिफरेंट सेल्स का, ये माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, और ये माइटोटिकली डिवीजन जो होते हैं यही बाद में हमारे मेल गैमीट को फॉर्म करते हैं। लेटर ऑन दिस विल फॉर्म मेल गैमीट। ओके, यही आपके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। आप इसके बाद इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है, 2-3 बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज सच एज पार्थीनियम, हम जानते हैं दे कॉज एलर्जी। ये क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है, एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। एंड देन पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं एंड दे आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। तो देखिए पॉलन ग्रेन का भी यूज आ गया, वो क्या है, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स।
टैबलेट्स के रूप में हमारा यूज करते हैं, एंड द कंजप्शन ऑफ देम हैज बीन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस. Okay, this is all about the male reproductive system, or only the part of a sexual reproduction in flowering plant. Okay, I hope आपको ये सब समझ में आया होगा. Thank you very much. Please subscribe, like and share the channel.